اگلی پیشی کے دوران جج یوسفی صاحب سے ملاقات کے متعلق پوچھنے لگے تو انہوں نے بتایا مجھے اب بھی حیرت محسوس ہو رہی ہے کہ وہ اتنی اونچائی سے گرنے کے بعد ہلاک ہونے سے کیسے بچ گئی، لیکن میں اس سے ملاقات کر کے آ رہا ہوں، اس کی حالت ناگفتہ بھی ہے لیکن سانس لے رہی ہے۔ کاظمی صاحب نے پوچھا مجھے مہر النساء نے بتایا ہے کہ رجب علی کی اس سے پہلے بھی شادی ہو چکی ہے اور اس کی بیوی کا نام سائرہ بانو ہے جسے وہ پیار سے سنی کہہ کر پکارتا تھا۔ 10 سال قبل ہونے والے ایئر لائن کے حادثے میں وہ ہلاک ہو گئی تھی اور اس کی تمام تر جائیداد رجب علی کے نام منتقل کر دی گئی تھی۔ یوسفی صاحب کے چہرے پر حیرت کے شدید تاثرات پیدا ہوئے جس پر انہوں نے جلد ہی قابو پا لیا اور مسکراتے ہوئے بولے مجھے حیرانی محسوس ہو رہی ہے کہ مہر النساء کو اس کے متعلق کیسے معلوم ہوا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ سائرہ بانو رجب علی کی پہلی بیوی تھی۔ وہ میرے بڑے بھائی کی اکلوتی لڑکی تھی۔ مرنے سے قبل میرے بھائی نے سائرہ بانو کا ہاتھ رجب علی کے ہاتھوں میں دے دیا اور مجھے مجبوراً ان دونوں کی شادی کرنا پڑی، ورنہ مجھے اپنے بھائی کی جائیداد سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ کاظمی صاحب نے پوچھا کیا آپ وہ وجہ بیان کریں گے جس کی وجہ سے آپ کو اپنی بھتیجی کے رشتے پر اعتراض تھا؟ یوسفی نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بتایا کیونکہ وہ بھی دماغی طور پر صحت مند نہیں تھی۔ عدالت کے کمرے میں چند لمحوں کے لیے گمبھیر خاموشی طاری ہوگی۔ یوسفی صاحب بھی خاموش ہو کے پھر جج صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے دوبارہ ہم کلام ہوئے مجھے معلوم ہے کہ یہ بات کچھ عجیب سی ہے لیکن آپ اسے ہماری خاندانی بیماری منسوب کر سکتے ہیں۔ ایسے کتنے ہی افراد ہیں جن کا تعلق ہمارے خاندان سے تھا، اعصابی مرض کا شکار ہوئے اور بعد میں ذہنی معذوری نے انہیں پاگل کر دیا۔ سائرہ بھی کافی حد تک پاگل تھی لیکن حیرت انگیز طور پر رجب علی اسے پسند کرتا تھا، اس لیے میں نے ان دونوں کی شادی کر دی۔ کاظمی صاحب نے جیسے مخاطب ہوتے ہوئے کہا مجھے حیرت محسوس ہو رہی ہے کہ رجب علی دماغی طور پر بیمار ہونے کے باوجود 2 شادیاں کر چکا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ پاگل نہیں ہے۔ جج صاحب نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے یوسفی صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کاظمی صاحب کے نقطے میں جان ہے، آپ اس پر روشنی ڈالیے۔ یوسفی صاحب بولے دراصل رجب علی پیدائشی مریض نہیں ہے، اس کے دماغ پر اثر سائرہ کے مرنے کے بعد ہوا ہے۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ رجب علی سائرہ سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس کی ناگہانی موت نے اسے تقریباً پاگل کر کے رکھ دیا تھا اور کتنا عرصہ پہلے وہ اپنے کمرے تک محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ جب بعد میں نے اس کی شادی مہر النساء سے کی تب وہ کچھ صحتیاب ہوا، تاہم ان دونوں میں زیادہ بنتی نہیں تھی اور میرے خیال میں ایسا سائرہ بانو کی وجہ سے ہوتا۔ مجھے یقین ہے کہ مہر النساء کو اس کے متعلق معلوم ہو گیا ہوگا، پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رجب علی نے اسے اس کے متعلق بتا دیا ہو جس کی وجہ سے ان دونوں کی زندگی تلخ ہو گئی اور مجھے مجبوراً سنی کے کردار کو درمیان میں لانا پڑا۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ سنی سائرہ کا ہی محفوظ ہے اور یہ نام مہر النساء کی موت کا سبب بن سکتا ہے، ورنہ میں کچھ اور منتخب کرتا۔ جیسا آپ نے جواب دیا آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے، ایسے تو آپ کسی کو بھی پاگل قرار دے کر اسے قتل کروا سکتے۔ یوسفی صاحب نے ڈاکٹر صوبیہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا میں گواہ کے طور پر ڈاکٹر صوبیہ کو آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، آپ ان سے دوبارہ پیش کش کر سکتے ہیں۔ کاظمی صاحب مسکراتے ہوئے بولے اگر میں ڈاکٹر صوبیہ کو آپ کا خاندانی ڈاکٹر کہوں تو اس میں کوئی مذائقہ نہ ہوگا، وہ اب تک آپ کے خاندان کے 2 افراد کا علاج کر چکے ہیں۔ یہ عجیب نفسیاتی مرض میں مبتلا خاندان ہے جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں۔ اس خاندان کے افراد اعصابی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں اور بعد میں پاگل ہو جاتے ہیں لیکن شادیاں 2 کرتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ جلد ہی یوسفی صاحب بھی کرنے والے ہیں۔ یوسفی صاحب کے چہرے پر تذبذب بھرے اثرات پیدا ہوئے، وہ بات کو بدلتے ہوئے بولے اس اعصابی مرض کی بدولت ہمارے خاندان میں بہت سی اموات ہوئی جن کا ثبوت میرے پاس موجود نہیں ہے، اس لیے شاید ڈاکٹر صوبیہ بھی گواہی نہ دے سکے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس مرض نے ہمارے خاندان میں تہلکہ مچا رکھا ہے۔ کاظمی صاحب جج کی طرف دیکھتے ہوئے بولے اب کچھ پردہ کشی اس حادثے سے متعلق بھی ہو جائے جس میں یوسفی صاحب کی بہو ہلاک ہوئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے یوسفی صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ ان کی بہو سائرہ بانو دماغی طور پر صحت مند نہیں لیکن حیرت انگیز طور پر اس نے اکیلے جہاز میں سفر کیا، یہ بات قابل ہضم نہیں۔ اس کے علاوہ یوسفی صاحب کے کہنے کے مطابق رجب علی شادی سے قبل بیمار نہیں تھا، تو پھر ایک پاگل لڑکی سے شادی کرنے کے لیے تیار کیوں کر ہو گیا؟ یوسفی صاحب نے سر آہ بھرتے ہوئے بتایا میں نے اپنے بھائی کے مرنے کے بعد سائرہ بانو کو اپنی بچی کی طرح پالا، مجھے لڑکیوں کا شوق تھا لیکن رجب علی کے بعد میری کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ تب میں نے سائرہ کو گود لے لیا، وہ ہمارے گھر میں پلی بڑی اور جہاں تک جہاز میں سفر کی بات ہے تو وہ اکثر و بیشتر کرتی تھی۔ ان دنوں میری بہن زندہ تھی، میں سائرہ کو اس کے پاس بھجوا دیا کرتا تھا، یہ اتنا مشکل نہیں تھا، میں سائرہ کو جہاز میں بٹھا دیا کرتا اور دوسری جانب میری بہن اسے اتار لیا کرتی۔ کاظمی صاحب بولے آپ کے بیان میں تضاد آ گیا ہے، کچھ دیر پہلے آپ نے بتایا تھا کہ آپ کو رجب علی اور سائرہ کے رشتے پر اعتراض تھا اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ سائرہ سے آپ کو اپنے بچوں کی طرح پیار تھا، ذرا تصحیح کر دیجیے۔ یوسفی صاحب بولے میں نہیں چاہتا تھا کہ رجب علی خاندان میں شادی کرے اور اس سے بچے بھی اس مرض میں مبتلا ہو کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے جو ہمارا خاندانی مرض ہے، اس وجہ سے میں نے رجب علی کی دوسری شادی خاندان سے باہر کی۔ اس حادثے کے علاوہ مجھے سائرہ سے کوئی اور عداوت نہیں تھی۔ کاظمی صاحب نے پوچھا مہر النساء کی جائیداد بھی یقیناً رجب علی کے نام منتقل ہو جاتی اگر وہ معجزانہ طور پر ہلاک ہونے سے بچ نہ جاتی، کہیں یہ سب منصوبہ بندی تو نہیں؟ ان دونوں جائیدادوں کے حصول کے بعد آپ اور رجب علی کروڑ پتی بن جاتے۔ مجھے معلوم ہے کہ مہر النساء کی جائیداد کا رجب علی کے سوا کوئی اور وارث نہیں ہے، اگر ان دونوں میں طلاق ہو جاتی تب ہاتھ آئی ہوئی دولت سے آپ کو محروم ہونا پڑتا، اس لیے آپ نے قتل کی ناکام کوشش کی۔ یوسفی صاحب نے تل لہجے میں جواب دیا مجھے جائیداد کی ضرورت نہیں، میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، ایک باعزت وکیل ہونے کے ناطے میں کسی کو قتل کرنے کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہاں اگر آپ کے پاس اس سے متعلق کوئی ثبوت ہے تو بات کیجیے، میں جواب دینے کے لیے حاضر ہوں۔ کاظمی صاحب بولے میرے پاس بہت سے ثبوت موجود ہیں لیکن میں اتنی جلدی عدالت کے سامنے پیش نہیں کروں گا، آہستہ آہستہ منظر عام پر لاؤں گا تاکہ معاملہ کھل کر سامنے آ سکے، اس لیے برائے مہربانی اگلی پیشی تک انتظار کیجیے۔ جج صاحب نے دوسرے دن کا وقت دیا اور پیشی کا اختتام ہو گیا۔
तीसरी पेशी के आगाज में जज ने यूसुफी साहब को मुकदमे का आगाज करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने ये कहकर बातचीत से इनकार कर दिया कि वो अपने जहनी तौर पर माजूर बच्चे के दिफा के लिए मुकदमा नहीं लड़ेंगे, बल्कि वो चाहते हैं कि इनके बच्चे की बीमारी को मद्देनजर रखते हुए इसके इस इकदाम को माफ कर दिया जाए। जैसे आपने काजमी साहब की जानिब देखा, वो अपनी जगह खड़े होते हुए बोले, मेरी मुवक्किला का भी यही कहना था कि इसका शोहर मरीज जरूर है लेकिन कातिल नहीं है। इसे बालकनी से धक्का यूसुफी साहब ने दिया था। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आज की पेशी से मुतल्लिक चंद गवाहों को एक के बाद दीगरे कोर्ट में बुलाना चाहूंगा। जैसा आपने इसबात में सारी लाते हुए इजाज़त दे दी और वहां मौजूद लोगों की जानिब देखते हुए बोले, मेहरबानी करके उमर जहां ज़ेब साहब को कटहरे में बुलाएं। एक 45 से 50 उम्र का पक्की उम्र का जहां दीदा आदमी लोगों के दरमियान से निकलकर कटहरे में आ गया। इसने हाथ में स्याह रंग की डिस्क पकड़ी हुई थी। काजमी साहब ने जज को बताया, उमर जहां ज़ेब का ताल्लुक इस मुकामी एयरलाइन के शोबा कंप्यूटर से है जो 10 साल कबल हादसे का शिकार हुई थी और जिसमें सायरा बानो सफर कर रही थी। मैं गुज़िश्ता रोज उमर जहां ज़ेब को मालूम करके कहा था कि क्या वाकई इस फ्लाइट में सायरा बानो ने सफर किया था। उमर जहां ज़ेब ने मुझे बताया कि इस नाम की किसी औरत ने सफर नहीं किया। मुकामी एयरलाइन जो कि मुल्क की सबसे बड़ी एयरलाइन है, इसके कंप्यूटर सेक्शन में 10 साल पुराना रिकॉर्ड आज मौजूद है। उन्होंने उमर जहां ज़ेब के हाथों से डिस्क लेकर इसे जज की मेज पर रख दी। जज साहब ने डिस्क उठाकर मातहत के हवाले कर दी। काजमी साहब ने उमर जहां ज़ेब से कहा, आप खुलकर मामले के मुतालिक बयान कीजिए कि हादसे वाले दिन क्या हुआ था। उमर जहां ज़ेब ने बताया, कुछ ज्यादा नहीं, सिवाय इसके कि इस दिन फ्लाइट में मुसाफिर कम थे और इन मुसाफिरों में सायरा बानो नहीं थी, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इसका नाम DNA टेस्ट वाली रिपोर्ट में मौजूद था। काजमी साहब ने जज को बताया, आपको हैरत होगी, DNA की रिपोर्ट के लिए जिस अस्पताल की लेबॉरेटरी का इंतखाब किया गया, इन दिनों डॉक्टर सोबिया इस अस्पताल में काम कर रहे थे। बहरहाल DNA की रिपोर्ट मुरतब करने इन अफराद से पूछगिछ की जा रही है। जल्द मजीद इंकशाफात होने की तवक्को है। यूसुफी साहब अपने जगह से खड़े होकर जैसे मुखातिब होते हुए बोले, मुझे समझ नहीं आ रही कि मुकदमा महरुन्निसा वाले हादसे पर दायर किया गया या फिर सायरा बानो की नागहानी मौत पर। मेहरबानी करके वकील मुखालिफ को मुद्दे की जानिब तवज्जो दिलाइए और महदूद रहने की तंबीह कीजिए, वरना मैं इसके खिलाफ एहतजाज करूंगा। जैसा आपने इनकार में सार हिलाते हुए कहा, मुकदमा रजब अली पर दायर किया गया है और महरुन्निसा के अलावा सायरा बानो भी इसकी बीवी है, इसके लिए पूछगिछ दोनों से होगी। तो फिर मुखालिफ वकील को गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फर्क पड़ता है? 10 साल पुरानी बात को यहाँ खींच लाने का मकसद क्या बनता है? मैं मानता हूँ कि मेरे लड़के ने जहनी तवाज़ुन बरकरार न होने की वजह से महरुन्निसा को फ्लैट से नीचे धकेलने की हिमाकत की, लेकिन वो इस वक्त होश में नहीं था। इससे गलती सरजद होगी और चूंकि महरुन्निसा बनने से बच गई है, इसलिए रजब अली की गलती को भी दरगुजर किया जाए। काजमी साहब मुस्कुराते हुए बोले, लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अब तक की तहकीकात के बाद कातिल की हैसियत तब्दील हो चुकी है। अब इन दोनों औरतों के कातिल आप हैं। मुझे यकीन है कि अगर गुलशन टाउन वाली कोठी के लान की खुदाई की जाए तो सायरा बानो के जिस्म की हड्डियां वहां से दस्तयाब हो जाएंगी। आपने इसे कत्ल करके मुकामी एयरलाइन के अफराद को तगड़ी रकम देने के बाद DNA रिपोर्ट में सायरा का नाम डाल दिया। तहम इसने फ्लाइट में सफर नहीं किया, इसलिए टिकट की फहरिस्त में आप इसका नाम नहीं डाल सके। शायद आपने कोशिश की हो, लेकिन मुझे इसके मुतालिक मालूम नहीं हो सका। इसके अलावा आपको उम्मीद नहीं थी कि महरुन्निसा 5वें मंजिल के फ्लैट से नीचे गिरकर बच जाएगी और होश में आने के बाद आप पर मुकदमा दायर कर देगी, वरना आप इसके खिलाफ बहुत कुछ करते। लेकिन वो कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा ताकतवर होता है, इसलिए आपकी कोशिश के बावजूद महरुन्निसा बनने से बच गई। यूसुफी साहब के सबर का पैमाना लबरेज हो गया। वो चिल्लाते हुए बोले, आप बेपर की हाँक कर अदालत का वक्त ज़ाया कर रहे हैं क्योंकि आपके पास इन बातों का कोई सबूत नहीं। मेहरबानी करके मुकदमे को मुद्दे तक रखें और उसके मुताबिक आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, जिसके लिए बहस जारी है। काजमी साहब बोले, तो ठीक है, मैं फिर मुद्दे पर बात करता हूँ। अदालत को शायद यकीन है कि कुछ अर्सा कबल यूसुफी साहब डॉक्टर सोबिया से निकाह कर चुके हैं। मेरे पास इस निकाह नामे की फोटोकॉपी मौजूद है। काजमी साहब ने अपने मेज से फाइल उठाई और इसमें निकाह नामे की कॉपी निकालकर जज साहब के सामने रख। जज साहब ने निकाह नामे का मायना किया और अपने करीब खड़े एहलकार को तहकीक करने के लिए अदालत से बाहर भिजवा दिया। काजमी साहब दोबारा बोले, निकाह नामा हासिल करने में मुझे दुश्वारी पेश नहीं है, मुझे अदालत से दस्तयाब होगा। अगर अदालत का इसरार हो तो मैं गवाहों को भी अदालत में पेश कर दूंगा जिनकी मौजूदगी में निकाह पढ़वाया गया था। तब मेरे ख्याल में इसकी जरूरत नहीं, निकाह नामा ही काफी है। यूसुफी साहब गुस्सीले लहजे में बोले, मुझे मुखालिफ वकील की दिमागी हालत पर शक महसूस हो रहा है। इस तमाम मामले का मेरी दूसरी शादी से क्या ताल्लुक है? मैं एक दफा फिर कहूंगा कि अदालत का वक्त ज़ाया ना करते हुए महरुन्निसा के मामले तक ही अपने आप को महदूद रखिए। इस दफा काजमी साहब भी गुस्सेले लहजे में जवाब देने लगे, आपकी इस शादी का ताल्लुक बराह रास्त कत्ल के दोनों केसों से है। सायरा ने तबाह होने वाले जहाज में सफर नहीं किया, लेकिन DNA रिपोर्ट की तैयारी के दौरान इसका नाम फहरिस्त में डाल दिया गया। यह सब डॉक्टर सोबिया की मदद के बगैर मुमकिन नहीं था। रजब अली की दिमागी कैफियत इस काबिल नहीं कि वो किसी का कत्ल कर सके। इस वक्त भी इसे दिमागी तौर पर माजूर जाहिर करने के लिए डॉक्टर सोबिया के पेशे को इस्तेमाल किया गया ताकि रजब अली को पागल समझकर फांसी चढ़ने से बचाया जा सके। अगर देखा जाए तो इस तमाम मामले में डॉक्टर सोबिया की हैसियत यूसुफी साहब से किसी भी तौर कम नहीं। मेरे ख्याल में इन्हें भी शामिल तफ्तीश कर लेना चाहिए। मैं अगर वक्ती तौर पर महरुन्निसा वाले मामले को बस से पूछ तरक कर सायरा के कत्ल की बात करूं तो मेरी तहकीकात के मुताबिक यूसुफी साहब इन दिनों गुलशन टाउन की कोठी नंबर 45 में मुकीम थे, लेकिन बहू की मौत के बाद उन्होंने एकदम कोठी छोड़कर फ्लैट खरीद लिया। वो कोठी आज भी खाली पड़ी है। अगर यूसुफी साहब इससे मुंतकिली की वजह बता दें तो मामले को आगे बढ़ाने में आसानी होगी। यूसुफी साहब बोले, मैं पहले बता चुका हूँ कि सायरा की नागहानी मौत ने रजब अली के दिमाग को मुतासर किया। तब डॉक्टर सोबिया ने मुझे जगह तब्दील करने का मशवरा दिया और मैं कोठी छोड़कर फ्लैट में आ गया। आपने कोठी को फरोख्त क्यों नहीं किया? वो इतना अरसा बंद रहने की वजह से भूत बंगला बंद कर रह गई है। यूसुफी साहब ने बताया, वो मेरी आबाई कोठी है, मैं इसे फरोख्त नहीं करना चाहता। हो सकता है कि कुछ अरसे बाद मैं वहाँ मुंतकिल हो जाऊँ।
क्योंकि महरून निसा की मौत के बाद अब रजब अली फ्लैट में नहीं रहना चाह रहा, इसे जगह की तब्दीली की जरूरत है। काजमी साहब बोले, बहरहाल सायरा की लाश कोठी के तहखाने में मौजूद है, अदालत खुदाई करके इसे हासिल कर सकती है। लेबॉर्टरी टेस्ट से मालूम हो जाएगा कि इसकी हड्डियां जली नहीं है और डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट से आपको पता चल जाएगा कि लाश किसकी है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। जज साहब ने खुदाई करने की तहरीरी इजाजत दे दी और मुकदमे को अगले दिन तक के लिए मुलतवी कर दिया। आखिरी पेशी का आगाज दोपहर के 3 बजे हुआ। जज ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए पेशी शुरू करने के लिए कहा। गुज़श्ता रोज गुलशन टाउन की कोठी नंबर 45 के तहखाने में खुदाई के बाद लाश का पिंजर दराफ्त किया गया और डीएनए टेस्ट रिपोर्ट ने साबित कर दिया कि लाश वाकई सायरा की है। इस इंकशाफ के बाद फौरन यूसुफी साहब को हिरासत में ले लिया गया। ताहम वो पेशी के दौरान अदालत के कमरे में मौजूद थे। पेशी का आगाज होते ही काजमी साहब के टहरे की तरफ आए और फिर तासुब भरे लहजे में हम कलाम हुए। यूसुफी साहब 2 औरतों के कातिल हैं, इनमें से एक इनकी भतीजी है। करोड़ों रुपए की जायदाद हथियाने के लिए उन्होंने अपने माजूर लड़के को इस्तेमाल करने में भी आर महसूस न किया। इनका एक और झूठ डॉक्टर आमना से पूछगिछ के दौरान सामने आया। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इन्हें कटहरे में बुलाना चाहूंगा। जज साहब ने इस बात में सर हिला दिया और काजमी साहब ने लोगों के दरमियान बैठी हुई डॉक्टर आमना को कटहरे में आने के लिए कहा। वो तमाशबीनों में से दरमियानी रास्ता बनाते हुए कटहरे में आ गई। इनकी उम्र 55 से 60 के दरमियान थी और रिटायरमेंट के बाद ज़ाती क्लिनिक चला रही थी। काजमी साहब ने जज को बताया, डॉक्टर सोबिया से पहले डॉक्टर आमना यूसुफी साहब की फैमिली डॉक्टर थे। चंद दिन कबल मुल्क में वापस आई हैं और कुछ दिन पहले उन्होंने क्लिनिक खोला है। यूसुफी साहब को इनके मुल्क आने की खबर नहीं, वरना वो इनसे राब्ता जरूर करते। ताहम सायरा की लाश मिलने के बाद अब कुछ भी छुपाने से इनकी सजा पर असर नहीं पड़ने वाला। रजब अली का इलाज सबसे पहले डॉक्टर आमना ने किया। इस वक्त इसकी उम्र 10 साल थी, जबकि गुज़श्ता पेशी के दौरान यूसुफी साहब ने बताया कि रजब अली सायरा की मौत के बाद जहनी मरीज बना। आप डॉक्टर आमना के बयान को सुनकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यूसुफी साहब ने किस तरह अपने माजूर लड़के को इस्तेमाल किया। वो चंद लम्हों के लिए खामोश हुए, फिर डॉक्टर आमना की तरफ मुड़ते हुए बोले, आप खुलकर डॉक्टर को बता दीजिए कि आपने रजब अली का इलाज कब शुरू किया और इसकी हालत इन दिनों कैसी थी। डॉक्टर आमना गोया हुई। जब इसे मेरे पास अस्पताल में लाया गया तब इसकी उम्र 10 से 12 साल के दरमियान थी। वो तन्हाई के मर्ज में मुब्तला था। इसकी माँ के मरने के बाद बाप ने इसे तन्हाइयों के अंधेरों में धकेल दिया था। जब वो बाहर जाते तो इसे घर में बंद कर दिया जाता। इन तन्हाइयों ने हसास लड़के को पागल कर दिया। 10 साल कबल जब यूसुफी साहब इसकी शादी सायरा से करने लगे तो मैंने इन्हें मना किया, लेकिन वो मासूम लड़की की जिंदगी से खेलने पर तुले हुए थे, इसलिए उन्होंने मेरे मना करने के बावजूद सायरा की शादी रजब अली से कर दी। इस बेजोड़ शादी के बाद मुझे यूसुफी साहब की जुबानी मालूम हुआ कि रजब अली सायरा को मारता पीटता है, इसलिए सायरा इससे अलहदा होना चाहती है, लेकिन यूसुफी साहब इस जायदाद को हाथ से नहीं जाने देना चाहते। इसलिए उन्होंने सायरा पर जोर देना शुरू कर दिया कि वो जैसे तैसे रजब अली के साथ जिंदगी गुजारे। तलाक की सूरत में न सिर्फ इसकी बदनामी होगी बल्कि अलहदगी के बाद इसे अकेले रहने वाले अजाब को भी झेलना पड़ेगा। लेकिन सायरा नहीं मानी और नाराज होकर अपने दूसरे शहर फूफी के पास चली गई। इसके बाद वो कब वापस आई और कब इसे हलाक किया गया मुझे कुछ मालूम नहीं। मैं अपने बेटे के पास बैरून मुल्क चली गई। कुछ दिन पहले मुल्क में वापस आई तो मुझे सायरा की मौत के मुताबिक मालूम हुआ, लेकिन मसरूफियत की वजह से यूसुफी साहब से मुलाकात न हो सकी। काजमी साहब ने पूछा, सायरा की दिमागी हालत कैसी थी? यूसुफी साहब की फैमिली डॉक्टर होने की वजह से आपको सब मालूम होगा। डॉक्टर आमना ने बताया, वो नहायत सुलझी हुई शरीफ लड़की थी। मेरी इससे कई दफा मुलाकात हुई थी। मैंने इससे हमेशा पुरखलूस और बाहलाक पाया। यूसुफी साहब के बयान में कोई हकीकत नहीं। काजमी साहब जज की जानिब देखते हुए बोले, डॉक्टर आमना का बयान आपके सामने है। यूसुफी साहब ने जो किया है वो जैसे भी किया है वो गैर मुतवक्किल तौर पर आपके सामने आ चुका है। दर हकीकत वो निहायत गाक और शातिर जहनियत के मालिक है। अगर महरून निसाम वो जाना तौर पर हलाक होने से बच जाती तब शायद इन्हें जायदाद पर कब्जा करने से कोई न रोक सकता, लेकिन इनके मनसूबे पर पानी इस वक्त फिर गया जब महरून निसाना सिर्फ हलाक होने से बच गई बल्कि इसने मुकदमा दायर भी कर दिया। तब यूसुफी साहब से गलतियां सरजद होने लगी। इन गलतियों की बदौलत सायरा का कत्ल मंजर आम पर आ गया। तब इन्हें मजीद झूठ बोलना पड़े जो रजब अली और सायरा की दिमागी हालत से मुतल्लिक थे। फिर डॉक्टर सोबिया का किरदार सामने आया जिसकी वजह से मकामी एयरलाइन में रिश्वत देने का मामला मंजर आम पर आ गया। सब कुछ आपके सामने है, इसलिए मैं आपके फैसले का मुंतजिर हूँ। जैसे आपने कलम उठाया और फाइल पर चंद नोट्स लिखने के बाद कलम की नोक को तोड़ दिया। ये इस बात की निशानदेही थी कि यूसुफी साहब की फांसी पर चढ़ने के अहकामात पर हतमी मोहर साबित हो चुकी थी। काजमी साहब ने इत्मीनान का सांस लिया और अदालत के कमरे से बाहर आ गए। इन्हें 4 पेशियों के दौरान यही हदशा लाहक रहा कि कहीं यूसुफी साहब इस लाश का डीएनए टेस्ट करवाने पर इसरार न कर दे जिसे उन्होंने महरून निसा की लाश जानकर दफनाया था और जिस पर मुकदमे की शुरुआत में बातचीत हुई थी। यूसुफी साहब को महरून निसा के बच जाने के इंकशाफ ने इस हद तक बुखला कर रख दिया था कि इन्हें लाश के डीएनए टेस्ट कराने का ख्याल ही नहीं आया। अगर करवा लेते तो शायद मुकदमे की नौबत ना आती, क्योंकि उन्होंने जिस लाश को कब्रिस्तान में दफनाया था वो वाकई महरून निसा की लाश थी, जिसके मुतालिक काजमी साहब को इस वक्त मालूम हुआ जब वो हैरत अंगेज तौर पर इन्हें मुकदमे के लिए उकसाने वाला वजूद गैर मुतवक्किल तौर पर गायब हो गया, यानी इन्हें खूबसूरती के साथ इंसाफ हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया गया। इनकी हालत उस वक्त बहुत खराब हुई जब इन्हें मालूम हुआ कि जिस लाश को यूसुफी साहब ने दफनाया था वो वाकई महरून निसा की लाश थी। ताहम वो इसका डीएनए टेस्ट नहीं करवाना चाहते थे, वरना हकीकत सामने आने के बाद दोबारा कार्रवाई का आगाज हो सकता था। अब चूंकि मुकदमे का फैसला हो गया था इसलिए अपने इत्मीनान की खातिर डीएनए टेस्ट करवा लेना चाहते थे ताकि हादसे की तस्दीक हो सके कि लाश वाकई सितारा महरून निसा की है या नहीं।